ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ ہم نے اس چینل پر نیا ناول بھی شروع کیا ہے، وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ چاہت ایسا مت بولو، میری محبت کا پلیز مذاق مت اڑاؤ۔ آلیان کے دل پہ اس کی ایک بات خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ التجا کرتے ہوئے بولا تو چاہت تمسخرانہ تالی مارتے ہوئے بولی، مذاق تو تم نے بنا رکھا ہے میری زندگی کا۔ کبھی کہتے ہو مجھے تو چاہت میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، میری بلا سے وہ جیے یا مرے مجھے کیا، اور کبھی کہتے ہو مجھے تم سے محبت ہے چاہت۔ واو، تمہیں ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ کیا آؤٹ کلاس ایکٹنگ کرتے ہو چاہت؟ اس دن جو میں نے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، میں بھی خود کو مارنے والی تھی، مجھے اس سے وہ ساری باتیں بولنی پڑی۔ میں تو تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آلیان اس دن کی وضاحت دینے لگا۔ بس کر دو آلیان، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کیوں اپنی اور میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ ہم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں، اور پلیز جھوٹ کی بھی کوئی ایک حد ہوتی ہے، لیکن تم تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ چاہت کو ہر چیز جھوٹ لگ رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگلے مہینے ہماری شادی کی اینیورسری ہے، اور میں تمہیں اپنی محبت سے یہ ثابت کر دوں گا۔ میری محبت اور میری ایک بات سچی ہے۔ آلیان ہر حالت میں چاہت کو اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی تب تک یہی رہوں گی، تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم اسی جگہ کھڑے کھڑے مجھے طلاق دو گے۔ بولو منظور ہے؟ چاہت بھی خود پہ ضبط رکھتی اسے چیلنج کرنے لگی۔ طلاق کی بات پہ آلیان خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولا، طلاق تک بات نہیں جائے گی میری جان، میں تمہیں اپنی محبت دوں گا، اور اتنی محبت دوں گا کہ تمہارے ہر دکھ ہر زخم کا ازالہ ہو جائے گا۔ آلیان یہ کہتا اس کے گال پہ لب رکھ گیا۔ چاہت شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اسے دور کرنے لگی، لیکن آلیان نے اس کے ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا رکھے، پھر نرمی سے دور ہوا۔ چاہت کے ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پہ تھے۔ جو کرنا ہے حد میں رہ کے کرو، یہ اونچی حرکتیں مت کرو، سمجھے؟ چاہت غصے سے تلبلانے لگی، اس کی ناک لال ہو رہی تھی، وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آج آلیان کو بہت ٹائم بعد وہ وہی پرانی چاہت لگی۔ آلیان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ چاہت ہل نہیں سکتی تھی، اس کا پاؤں فریکچر تھا، وہ دور بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ آلیان نے اس کی لال ناک کو ہونٹوں سے چھوا اور بولا، جب آپ کا محبوب آپ کا محرم ہونا تو محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور یہ محبت تو اللہ کی بھی بہت پسند ہے۔ آلیان جان لیوا سرگوشیاں کرنے لگا۔ 1 مہینے تک بہت تنگ کرنے والا ہوں تمہیں، کہ تنگ آ کے تم خود محبت کا اظہار مجھ سے کر دو گی آ کے۔ آلیان نے اس کے کان میں شرار سے کہا تو چاہت کے جسم میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی، ویسے جھوٹی امیدیں بہت تکلیف دیتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، تم تکلیف 1 مہینے بعد جھیل لینا۔ چاہت غصہ کرنے لگی، دیکھتے ہیں تمہاری ضد جیتی ہے یا میری محبت۔ آلیان یہ کہہ کے کودا اور بیڈ پہ چڑھ گیا، ایک کشن چاہت کی گود میں رکھا اور سر رکھ کے لیٹ گیا۔ چاہت گڑبڑائی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اسے بےہودگی نہیں محبت کہتے ہیں میری جان۔ آلیان چاہت کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، وہ اس کا سر پٹک کے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اس کا تو ہلنا محال تھا۔ آلیان اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے زج کر رہا تھا۔ آلیان باہر گیا تھا، چاہت کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ٹی وی کا ریموٹ ٹٹول رہی تھی، وہ بیٹھ کے اب اوب گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اور ابھی ایسے غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ چاہت جھنجھلا رہی تھی، نہیں میرے جان، دعوے بالکل سچے تھے، تم نے یاد کیا اور غلام حاضر ہے۔ آلیان نے سرخم کیا، وہ جو ابھی روم میں داخل ہوا تھا چاہت کی بڑبڑاہٹ سن کے مسکرانے پہ مجبور ہو گیا۔ لگتا ہے کوئی سستا نشہ کرنے لگے ہو کیا؟ ہر وقت فضول بولنے لگے ہو؟ چاہت کڑوا سا منہ بنا کے بولی، کوئی سستا نہیں، آپ کی محبت کا نشہ کرنے لگا ہوں بیگم، اور جنہیں آپ فضول باتیں بول رہی ہیں نا، وہ میری محبت ہے۔ آلیان کہتے ہوئے جھکا اور چاہت کو اپنی بازو میں اٹھا لیا۔ چاہت جھٹپٹائی تو آلیان ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ آلیان کہاں جا رہے ہو؟ مجھے نیچے اتارو مجھے نیچے۔ چاہت غصے سے بولی، تم ہی بور ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آج موسم کافی سہانا ہے، تمہیں باہر لان میں لے جاؤں اور تم سے پیار بھری باتیں کروں۔ آلیان اسے لے کر لان میں پہنچا۔ آلیان بس کر دو یہ محبت کا راگ الاپنا، بند کرو۔ چاہت جھنجھلا گئی۔ آلیان نے چاہت کو کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے پاؤں اٹھا کے سامنے والی کرسی پر رکھے، اس کی کمر کے نیچے لا کے کشن رکھ دیا۔ آلیان تو شروع سے ہی کیئرنگ تھا، لیکن اب کچھ زیادہ ہی چاہت کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے چاہت کے گلے میں وہی لاکٹ ڈال دیا جو شادی سے اسے منہ دکھائی کے طور پر دیا تھا۔ یہ لاکٹ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو گم ہو گیا تھا نا؟ چاہت اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولی، یہ مجھے اسٹڈی ٹیبل کے نیچے پڑا ہوا ملا تھا، تمہیں دینے کا موقع نہیں ملا۔ تمہارے جانے کے بعد 5 مہینے اسی لاکٹ کو دیکھ کے گزارے تھے، اس سے تمہاری خوشبو آتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ تم ہر وقت میرے ساتھ ہو۔ آلیان کہنے لگا تو چاہت کی نظروں سے اس کی آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی۔ دل نے کہا آلیان سچا ہے، تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ دماغ بولا دھوکا ہے، فریب ہے سب، اس پہ یقین مت کرنا۔ دل اور دماغ کی کشمکش میں چاہت نے دل کی آواز دبا دی اور دماغ کی سن لی۔ آلیان کی ہر ایک انداز سے محبت چھلک رہی تھی، لیکن چاہت اندھی بہری بنی کچھ سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کے دل اور دماغ کی جنگ میں ہر بار دماغ کو فوقیت ہو رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی، چاہت اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی، کھانا آلیان سے کھلا چکا تھا، دوا بھی لے لی تھی اس نے۔ دوا سکون آور تھی تو اسے نیند آنے لگی۔ وہ سوفے سے ٹیک لگا کے نیند کی وادی میں گم تھی، اس کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن شاید آلیان کی وجہ سے ہی پہلے والا سرد پن ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا چاہت کو۔ آلیان فون پہ ڈیڈ سے بات کر رہا تھا، وہ جیسے ہی اندر آیا چاہت کو کاؤچ پہ بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔
उसकी मुस्कुराहट उसे देखकर उभरी। वो उस तक पहुंचा। जैसे ही उसे उठाने लगा, चाहत हड़बड़ा के उठी। क्या कर रहे हो तुम? चाहत ने बेतुका सा सवाल किया। बता दो। आलियान के कहने पे चाहत उसे खुरी से नवाजा। वो हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारी नींद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस तुम जाग गई। आलियान ने झुक के चाहत के कान में सरगोशी की। चाहत ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि तुम सच में इंतहाई सस्ता नशा करने लगे हो। चाहत उसकी बातों पे हैरान थी। जान, तुमने सवाल ही ऐसा उल्टा पूछा था। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी कर सकता हूँ। और जहां तक बात है नशे की, तो आलियान मजीद झुकने लगा तो चाहत हड़बड़ा गई और छट से बोली, अच्छा अब ज्यादा छिछोरी हरकतें मत करो। आलियान ने मुंह नीचे कर लिया। हंसी जब्त करने के चक्कर में उसका सफेद रंग सुर्ख हो गया। उसने कुछ बोले बगैर ही चाहत को उठाया और रूम की तरफ चल दिया। चाहत टुकर टुकर उसे देख रही थी। ऐसा क्या देख रही हो? आलियान ने एकदम उसकी चोरी पकड़ी। कुछ नहीं। चाहत गड़बड़ा गई और फौरन नजरें झुका गई। वो शर्मिंदा सी हो गई। आलियान ने उसे रूम में लाके बेड पे बिठा दिया। वो बेड पे नीम दराज हो गई और खुद उसके पास बैठ गया। उसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें मुझे ऐसे चोरी छुपे देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना आप कब का सौंप चुका हूं तुम्हें। चाहत ने नजरें उठा के देखा तो आलियान उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। चाहत कुछ ना बोली। आलियान को उसकी आंखों में अपने लिए बेतनाई नजर आई। मैं कब तुम्हें देख रही थी? चाहत गुस्से से बोली तो आलियान ने सर नफी में हिलाया और मुस्कुराया। तुम बिल्कुल नहीं बदली चाहत, आज भी वैसी ही हो, बिल्कुल बच्ची। झूठ तो तुम्हें बोलना ही नहीं आता है, वो उसकी नाक खींचते हुए बोला। उसने मुंह बना लिया। मैं पहले ही बच्ची थी। पहले मैं सोचती थी कि मैं जैसी भी हूँ सब वैसे ही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया फरेब से भरी हुई है। लेकिन अब ठोकरों ने मुझे समझदार बना दिया है। चाहत का इशारा आलियान की तरफ था। आलियान ने लंबी सांस हवा के सपोर्ट की। वो जो बात भी करने जाता, चाहत बार बार उसे वही बात याद दिलवाती थी। आलियान बिना कुछ बोले उठ गया और दूसरी साइड पे जाके लेट गया। चाहत जो अभी अभी बैठी थी, अपने और आलियान के बीच तकिया रखकर लेट गई। आलियान की इस मासूमाना एहतियात पर भी जी भरकर मुस्कुराया था उसकी। आज कल तो आलियान के चेहरे पे मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। उसकी चाहत जो उसके पास थी। चाहत अभी कच्ची नींद में थी जब आलियान ने सारे तकिए उठाए और दूर फेंक दिए और खुद चाहत के करीब चला गया और कल रात की तरह उसकी गर्दन में मुंह दिए सोने लगा। उसे लगा चाहत सो चुकी है, लेकिन आलियान, ये क्या बेहूदगी है, दूर रहो, चल उधर होकर लेटो। चाहत उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन वो ठीक बना लेटा रहा। आलियान उसे तंग करने लगा और उसे कोई भी मौका जाने नहीं देता था तंग करने का। यार चाहत, मुझे अभी बहुत गहरी नींद आ रही है, प्लीज बाकी लड़ाई सुबह लड़ लेना, ओके। आलियान वाकई बहुत थक गया था। चाहत की बात पे वो नींद के खुमार में बोला। चाहत कुछ बोलती, उसे अपनी गर्दन पे आलियान की भारी सांसें महसूस हो रही थी। वो सो चुका था। चाहत को भी नींद के झोंके बार बार आ रहे थे, इसलिए वो भी बिना कुछ बोले सो गई। वो तो हिल तो सकती थी अब, इसीलिए चुपचाप सो गई। आलियान को तो चाहत के साथ 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में आलियान ने उसका बहुत ख्याल रखा था। बारहा वो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवा रहा था, लेकिन चाहत तो कुछ सुनने को समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे आलियान की हर एक बात धोखा फरेब लगती थी। अभी भी चाहत लाउंज में सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। आलियान उसके पास थप से बैठ गया। आलियान, ये क्या बदतमीजी है, डरा दिया तुमने मुझे। चाहत सांस बहाल करते हुए आलियान को गुस्से से बोली, जो उसे जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। मेरी शेरनी कब से डरने लगी? आलियान उसे मजीद चढ़ा रहा था। आलियान, फजूल बातें मत किया करो। चाहत का पारा हाई हो गया। चाहत के जख्म काफी बेहतर हो चुके थे। हाथ और गर्दन पे अब भी पट्टी नहीं थी। अलबत्ता सर का जख्म काफी गहरा था, इसलिए अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। आलियान गहरा मुस्कुराया। आजकल हमारी हर बात तो आपको फजूल लगने लगी है, लेकिन आप जब भी अपनी मोहब्बत का हमें असीर बनाएंगे ना, तब आपको हमारी सारी यही बातें अच्छी लगने लगेंगी। चाहत नजरें चुका गई। आए हाय, तुम्हारे ये शर्माना तो मार ही न डाले मुझे एक दिन कसम से। आलियान उसे आंख मारते हुए शरीर अंदाज में बोला। चाहत सच में अब ब्लश करने लगी थी। आलियान, अब तंग मत करो मुझे। हाय, अभी से तंग हो गई, अभी तो तुम्हें सारी जिंदगी झेलना है मुझे। आलियान उसे आज अलग ही मूड में लग रहा था। ये खुशफहमियां, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ अरसा ही हूँ और ये सारी जिंदगी कहाँ से आ गई? चाहत ने उसे शर्त के बारे में याद दिलाया। मेरी आफत, मुझे पूरा यकीन है अपनी मोहब्बत पे, तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकोगी। आलियान आंख दबा के बोला। चाहत उसे हैरानगी से देखने लगी। उसे इतना यकीन था कि वो दोनों अलग नहीं होंगे। देखते हैं, चाहत ने मुंह बनाया। हाँ, तो मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, तो फिर देखेंगे। चाहत ने अब फ्रैक्चर पांव अपनी गोद में रखा। चाहत बौखला गई। आलियान, ये चाहत कुछ कहती, आलियान ने उसे चुप करा दिया। 1 मिनट चाहत, हाथ परे करो, मुझे पाँव देखने दो। आलियान अब की बार संजीदगी से उसके पाँव का जायजा ले रहा था। उसका पाँव आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था। चाहत, मेरी जान, तुम्हारे सारे जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। आलियान उसकी गर्दन से बाल हटा के जख्म का जायजा लेने लगा, जो काफी मुंतमिल हो चुके थे। सिर्फ निशान ही बाकी थे। वो इस निशान को सहलाने लगा और दिल के हाथों मजबूर हुआ और झुक के उसके निशान पर लब रख दिए। आलियान की इस जसारत पे चाहत की जान ही निकल गई। चाहत ने जोर से आंखें मीच दी। उसने अपना दुपट्टा हाथ में जकड़ रखा था। आलियान पीछे हुआ। वो चाहत की हरकत पे मुस्कुराए बगैर ना रह सका। तुम बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ चाहत, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती।
आलियान चाहत से मुखातिब हुआ जो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। आलियान, ये झूठी फिक्र करना बंद कर दो और क्यों बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आलियान की बात पे चाहत ने झट से आंखें खोली और गुस्से से आलियान की तरफ मुड़ी। उससे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था ये सब। उसे डर था कि कहीं वो हथियार न डाल दे। उसे अब आलियान की बातें सच लगने लगी थी। दिल बार बार आलियान की मोहब्बत की गवाही दे रहा था और दिमाग आलियान के धोखे की। वो इसी कश्मकश में थी कि आखिर करे तो क्या करे, दिल की सुने या दिमाग की। आलियान शायद किचन में था, उसके लिए सूप लेने गया था। चाहत बेड पे बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। उसका फोन जो कि बेड पे पड़ा था, चाहत ने फोन उठाया, देखा तो उसकी अम्मी का था। उसने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। चाहत ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मेरी जान कैसी हो तुम? आफिया बोली। और इदरीस साहब रोज चाहत को फोन करते थे उसकी खैरियत पूछने के लिए। चाहत ने उन्हें आलियान और अपनी शर्त के बारे में बताया नहीं था। वो सोच रही थी कि वो दोनों के बीच अब सब ठीक हो रहा था। अम्मी, अब काफी बेहतर हूँ। आलियान बेटा कैसा है? वो तुम्हारा ठीक से ख्याल रखता है ना? आफिया सवाल कर बैठी। जी अम्मी, आलियान बहुत ख्याल रखता है मेरा। बेटा, मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों लगता है कि आलियान तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत ही नजर आती है। सिर्फ वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान है। आफिया आलियान की साइड लेने लगी तो चाहत ने झट से उनकी बात काटी। अम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ वक्ती हमदर्दी है। कुछ दिनों में ये हमदर्दी भी खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने दुनिया देखी है, मुझे हमदर्दी और मोहब्बत का फर्क पता है। तुम आलियान की मोहब्बत को हमदर्दी का नाम दे रही हो। हमदर्दी में किसी की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाया नहीं जाता, उसके लिए बेआब मछली की तरह तड़पा नहीं जाता। आलिया तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। आफिया आज चाहत को समझाने के मूड में थी, लेकिन अम्मी, चाहत कुछ बोलने वाली थी तो आफिया ने उसकी बात काट दी। लेकिन क्या चाहत? मैंने तुम्हारे लिए आलियान को तड़पते देखा था इस दिन हॉस्पिटल में। तुम्हारे बाबा ने उससे गुस्से में जाने को कहा था, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी थी। वो वहीं बैठा रहा, उसकी बेइज्जती भी की थी, लेकिन उसे तो खुद से कोई सरोकार था ही नहीं। उसे तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा अजीज थी। आफिया बोल रही थी और चाहत को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। इस दिन एक पल के लिए भी वहां से वो नहीं हिला। चाहत, अगर उसे तुमसे हमदर्दी सिर्फ होती तो वो ऐसे दीवाना बना क्यों घूमता? तुम्हें पता है चाहत, उसकी हालत वहां सबको रुला रही थी। सब तो तुम्हारी किस्मत पर रश कर रहे थे कि कोई किसी के लिए इतनी मोहब्बत भी कर सकता है किसी से, और तुम कह रही हो वो सिर्फ हमदर्दी थी। देखो चाहत, अपनी जिद और अना और गलत फहमी के चक्कर में इतना मोहब्बत करने वाला शख्स मत खो देना। वो तुमसे सच में मोहब्बत करता है। मैंने देखी है उसकी मोहब्बत, बस तुम्हें ही नहीं दिख रही। आफिया पुरशिकवा लहजे में चाहत को समझाने लगी कि कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। लेकिन अम्मी, ऐसे कैसे आप यकीन कर सकती हैं इन बेमानी बातों का? चाहत मानने को तैयार ही नहीं थी। चाहत, ये कोई बेमानी बातें नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे और आलियान के दरमियान जो भी खलिश है उसे खत्म कर दो, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जितना गहरा होता है इतना ही नाजुक भी होता है, जिसे एक छोटी सी गलत फहमी भी तोड़ सकती है। पर कुछ नहीं। चाहत, इतनी आसानी से ये रिश्ता खत्म मत करो। तुम जानती हो अल्लाह का सबसे नापसंदीदा काम तलाक है, इसलिए इस रिश्ते को मौका देके देखो। क्या पता तुम्हारे और आलियान के दरमियान सारी गलत फहमियां दूर हो जाएं। आफिया चाहत को मुसलसल समझा रही थी। चाहत उनकी बातों पे बहुत गहरी सोच में डूबी थी। अब मैं रखती हूँ चाहत, मेरा काम था तुम्हें समझाना और सही रास्ता दिखाना। आगे तुम्हारा फैसला, लेकिन अपनी माँ की बातों पर गौर जरूर करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाहत ने फोन रख दिया और वो अपने और आलियान के रिश्ते का जायजा लेने लगी। उसे आलियान के साथ गुजारे एक एक पल से खुशी, हंसी, रोना, दुख, तकलीफ, हर चीज का मुआवजा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे तो कहीं भी आलियान की बातों में धोखा फरेब कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन क्या करें, शक एक ऐसा ही दिमाग है जो सारे रिश्ते खा जाता है। आलियान सूप लेकर आया तो चाहत उसका फोन हाथों में लिए गहरी सोच में गुम थी। आलियान उसके पास बैठा और बोला, क्या हुआ जो इस कदर गहरी सोच में डूबी हुई हो? आलियान उसके करीब हुआ तो चाहत उसकी आवाज पर डर गई। उसे तो आलियान के आने का पता ही नहीं चला। वो मैं क्यों, कोई मसला है? हर चीज में तुम्हारी घुसने की आदत अभी तक गई नहीं है क्या? चाहत गुस्से से बोली तो आलियान को आज इसमें पहली वाली चाहत का रूप नजर आया। मसला है ना, बहुत बड़ा मसला है। मेरी बीवी जो हर वक्त अपने इस मासूम शौहर को इग्नोर करती है, वो मसला है। आलियान मजाक करने लगा। उसे चाहत को जिद करने में मजा आता था। हो गया, चाहत दांत पीस के बोली तो आलियान ने इस बात में सर हिलाया। आलियान उसे बड़ी एहतियात से सूप पिलाने लगा। चाहत ने पिछले एक हफ्ते से उसे अपने हाथ से कुछ नहीं खाया था। आलियान उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसके बाल भी अपने हाथों से बनाता था, जबकि चाहत के हाथ की जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। चाहत को आलियान की एक एक बात, एक एक हरकत में बेतहाशा मोहब्बत महसूस होती थी। बस जिद आड़े आ जाती थी। ऐसे क्या देख रही हो? चाहत आलियान को मुसलसल देख रही थी तो आलियान ने उसकी हरकत नोट कर ली और उसे पूछने लगा तो चाहत ने जख्मी से मुस्कुराहट लिए बोलना शुरू किया। देख रही थी कि सच में तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है कि मेरी बीमारी, मेरी मजबूरी तुम्हें उकता तो नहीं रही, या ये भी तुम्हारा कोई गेम प्लान है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए चाहत ना चाहते हुए भी कड़वा सच बोल की उसके दिमाग में उसकी अम्मी की बातें मुसलसल घूम रही थी। उसे लग रहा था कि क्या सच में आलियान उसे इस कदर मोहब्बत करता है या सिर्फ दिखावा है। मेरी चाहत, जहां तक बात मोहब्बत की है ना, वो तो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है, और गेम प्लान है ना तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का। आलियान उसे आंख मारते हुए बोला और उसे सूप पिलाने लगा। चाहत ने चुपचाप सूप पी लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी क्या सच में वो आलियान उससे मोहब्बत करता भी है या नहीं। वो अपनी अम्मी की बातों से काफी हद तक समझ चुकी थी। आलियान ने चाहत को दवा दी और लेटा दिया, साथ ही दूसरी तरफ दराज हो गया।
वो चाहत के बालों में उंगलियां चलाने लगा। चाहत उसे देख रही थी। ऐसे मत देखा करो बेगम, कहीं प्यार ना हो जाए। आलिया ने उसे खुद को तकते पाया तो शरीर हुआ। चाहत ने नजरें फेर ली और बोली, एक बार ये गलती कर चुकी हूँ और इसकी सजा अभी तक झेल रही हूँ। चाहत का इशारा आलियान की मोहब्बत की तरफ था, जिसके सिले में उसे अपनी खुशियां, अपनी नरम तबीयत, सब कुछ गंवाना पड़ा। आलियान समझ तो चुका था कि चाहत उससे मोहब्बत करती है, इसलिए कुछ ना बोला, झुक के उसके सर पे बोसा दिया। चाहत इस बार बोसा करके देखो, चाहत इस बार भरोसा करके देखो, इस बार फूलों से तुम्हारी राहें भर दूंगा, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, तुम्हें खुद में समेट लूंगा। बस एक मौका दो चाहत, प्लीज। चाहत कुछ ना बोली और नजरें झुका गई। आलियान मुस्कुरा दिया। रात के 2:30 बज रहे थे। चाहत तो मामूल के मुताबिक आलियान के हिसार में थी, लेकिन वो जाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया, उनके रिश्ते का मुस्तकबिल क्या होगा। वो मौका दे आलियान को या ना दे। उसने मुड़ के आलियान की तरफ देखा, जो गहरी नींद में उसे जकड़े हुए था, जैसे उसे डर हो कहीं दोबारा वो उसे छोड़कर ना चली जाए। चाहत बस सारी रात अपने और आलियान के रिश्ते के बारे में सोचती ही रही। चाहत इस वक्त लॉन में बैठी अपने और आलियान के रिश्ते पे गौर और फिक्र कर रही थी। हवा काफी ठंडी थी। आज मौसम अबर आलूद था। कराची में गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो शायद आज बारिश का इम्कान था। आलियान चाहत को लॉन में छोड़कर खुद बाहर कहीं चला गया। चाहत जब से आलियान के साथ आई थी, आलियान ने उसका ख्याल किसी बच्चे की तरह रखा था। वो अभी अभी घर में दाखिल हुआ। सामने उसकी चाहत किसी सोच में गुम थी। उसने तासुफ से चाहत को देखा, जो कभी खुशियां बिखेरा करती थी। आज उसकी खुशी कहीं गुम थी। उसने एक लंबी सांस हवा के सपुर्द की और चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट लिए चाहत तक आया। उसने चाहत के आगे चॉकलेट्स की। चाहत ने मुड़ के देखा तो आलियान उसे चॉकलेट्स लेने का इशारा कर रहा था। चाहत ने नजरें झुका ली। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो चॉकलेट्स खाऊं। उसका लहजा अभी भी तल्ख था। कितनी बदल गई हो तुम चाहत, कितनी पसंद थी तुम्हें चॉकलेट्स। आलियान उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठा। मुझे और भी बहुत कुछ पसंद था, लेकिन उसी ने मुझे अजियत से दो चार किया है। चाहत ने जवाब दिया तो आलियान फीका सा मुस्कुराया। चाहत, तुम्हारी इसी तकलीफ का अजाला करूंगा मैं। आलियान ने चाहत के लिए चॉकलेट का रैपर खोल के उससे एक पीस तोड़कर चाहत के सामने किया तो चाहत ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और चॉकलेट का पीस खा लिया। इतना आसान नहीं है आलियान, एक मौका तो दे के देखो। आलियान ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। चाहत ने आलियान की तरफ देखा। उसकी आंखें भीगने लगीं। आलियान ने उसके आंसू पोंछे। चाहत, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैं माफी मांगता हूँ अपने हर उसकी रवैये के लिए जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है। देखो आलियान, मुझे नहीं पता तुम जो कह रहे हो वो सच है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अब की बार तुमने कभी कुछ भी किया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, क्योंकि और दुख सहने की ताकत मुझ में नहीं है। आलियान उसे इस हालत में देख के बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं वो भी इसकी इस हालत का जिम्मेदार था। चाहत, प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्या तुम्हें कभी मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आई? आलियान ने चाहत को झिंझोड़ा। मुझे नहीं पता आलियान। चाहत ने नजरें चुराई। आलियान ने उसके चेहरा उठाया। चाहत, ये गुरेज क्यों बार बार तुम नजरें चुरा लेती हो? आज मुझे जवाब चाहिए। आलियान गंभीर लहजे में बोला। जवाब दो चाहत, आखिर क्यों कर रही हो? आलियान आज जिद करने लगा। आलियान, मुझे कोई बात नहीं करनी। चाहत आलियान को खुद से दूर करने लगी, जो कुर्सी के इर्द गिर्द हाथ रख के झुका हुआ था। उसकी गर्दन की ऊपर गर्म सांसें और चेहरे पर पड़ रही थी। नहीं चाहत, आज नहीं। आज मुझे जानना है क्यों बार बार तुम मुझे खाली हाथ कर देती हो। इतने दिनों से हम एक साथ रह रहे हैं। क्या तुम्हें कभी मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं लगी? क्या कभी मेरी मोहब्बत में धोखा नजर आया? आज मुझे जवाब चाहिए। प्लीज आलियान, मुझे कोई जवाब नहीं देना। चाहत रोने लगी। नहीं चाहत, आज तुम्हारे ये आंसू तुम्हें बचा नहीं सकते। हर बार तुम्हारे ये आंसू मुझे कमजोर कर देते हैं, लेकिन आज नहीं। मुझे जवाब चाहिए। आलियान उसके आंसू नरमी से साफ करने लगा। उसकी आवाज बहुत सर्द थी। चाहत तो आज फंस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे दामन बचाए। यहाँ देखो मेरी आंखों में। आलियान ने 2 उंगलियों से उसका झुका हुआ चेहरा उठाया। चाहत ने नजर उठा के आलियान की आंखों में देखा। देखो मेरी आंखों में, सच सच बताना, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? आलियान आज उसे मोहब्बत का इजहार करवाने के मूड में लग रहा था। चाहत को आलियान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत ही नजर आ रही थी। चाहत कुछ बोलती, अपने घर की घंटी बज गई। दोनों चौंके। चाहत ने बस शुक्र किया आज उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या वो जवाब देती आलियान को? आलियान का मूड बुरी तरह खराब हो गया। वो बस चाहत से इजहार करवाने ही वाला था। दरवाजे पे गया तो देखा मेड थी जो काम करने आई थी। वो दरवाजा बंद करके अंदर आया तो देखा मेड चाहत से बातें कर रही थी। चाहत ने जानबूझ के उसे रोका था। आलियान गुस्से से लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। उसे पता था कि ये सब चाहत कर रही है। उसने मेड को जानबूझ के रोका है ताकि वो आलियान से बच सके। चाहत ने आलियान को अंदर जाता देख के सुकून का सांस लिया। चाहत काफी देर मेड से बातें करती रही। आलियान अंदर ही था। वो बार बार ऊपर कमरे की तरफ देख रही थी। आलियान को बहुत गुस्सा था। ऊपर कमरे में चला गया। वो वहां मौजूद खिड़की से चाहत को मुसलसल घूर रहा था। चाहत की बेचैनी वो नोट कर रहा था। बेसाख्ता उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। चाहत बार बार ऊपर मुड़ के देख रही थी। उसे लग रहा था कि आलियान नाराज हो गया है, इसलिए वो काफी बेचैन थी। उसे वहां लॉन में बैठे बैठे काफी देर हो चुकी थी। अब वो थक रही थी। उसे नींद आने लगी। उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया था। उसने आलियान का बहुत इंतजार किया कि वो आए, उसे अंदर ले चले, लेकिन वो जब नहीं आया तो चाहत ने मजबूरन उठने की कोशिश की
اس کے پاؤں میں ابھی بھی پلاسٹر تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس نے پاؤں زمین پر رکھے، جیسے ہی کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی تو اسے پاؤں پہ وزن برداشت نہیں ہوا۔ وہ گرنے والی تھی کہ 2 آہنی بازوؤں نے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، پیچھے دیکھا تو آلیان تھا۔ آلیان اوپر روم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے چاہت کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً نیچے آیا۔ اسے پتا تھا چاہت کا پاؤں ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا ہے، اس لیے چل نہیں سکتی۔ آلیان نے چھٹ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور سیدھا روم میں لے آیا۔ اسے واقعی چاہت کی حرکت پہ کافی غصہ تھا۔ اگر اسے چوٹ لگ جاتی تو ابھی کچھ وقت پہلے ہی آلیان بس چاہت کو کھونے ہی والا تھا، اس لیے اب اس کے لیے مزید پوزیسو ہو گیا تھا۔ نیا ناول سننے کے لیے اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔